Hello students, hello again. So now we are going to do the most interesting part of this complex number, and that is called geometry of complex number. We call it geometry of complex number. So starting maybe I tried some part of this with the argument part. फिर एक दो क्वेश्चंस में भी मैंने यूज करने का ट्राई किया था ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. Now, this is the most important, most productive and most, I will say, entertaining part of complex number. एक बार समझने में प्रॉब्लम होगा, but actually है बहुत simple. This is very simple part, but usually कई बुक्स में कोई टीचर्स मोस्टली दे डू नॉट यूज दिस. लोग इसको यूज नहीं करते हैं and so they find it difficult to understand. Students find it difficult to understand, but once you understand this, it becomes so simple that you won't believe that you'll be able to solve a long questions in a very short time and very less effort. And it is as simple कि भाई modulus क्या होता है. There are two kind of geometries. One is based on modulus, second based on argument. Conjugate बीच में थोड़ा बहुत आएगा, but that is okay. So मॉडुलस होता क्या है? सो आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग कि मॉडुलस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. अब मॉड ऑफ जेड में ओरिजिन कहां से आए? सो मॉड जेड को आई से कि यू कैन राइट मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो, एंड सो इट बिकम्स डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम जीरो. याद करो वेक्टर कोई होता था वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी को हम क्या लिखते थे? ए का पॉइंट अगर ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, बी पॉइंट को बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो ए बी वेक्टर होता था बी माइनस ए वेक्टर, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. सो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का जो मॉड है, मतलब ए बी का जो मॉड है, वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता था? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. Similarly, mod of z minus 0 will be distance between 0 and z. And by now, you can understand that mod of z1 minus z2 will be distance between z1 and z2. As simple as that. This is 50% of the geometry is khatam. You just have to understand this कि भाई z1 minus z2 क्या होता है? Distance between, mod of z1 minus z2 क्या होता है? Distance between z1 and z2. If you understand this small part, then 50% of the geometry is done, and you'll be, and I will say 1/3 of complex number is finished. You will be able to solve 1/3 of the complex number question by just this minuscule idea कि mod of z1 minus z2 is distance between z1 and z2. Now let's start कि what I'm talking about. So mod of z को let me write it mod of z minus 0. And that will tell you the distance between 0 and z. याद करो वेक्टर ए बी की बात करते थे तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होता था. तो आई कैन से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और कैन से डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, बट आई प्रीफर ए को पहले बोलना और बी को बाद बोलना. तो इसको मैं फर्स्ट बोलूँगा, इसे सेकेंड बोलूँगा. हालांकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आगे चेंज आएगा तो आपको बताया जाएगा. तो जस्ट लर्न डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड z. अच्छा, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा? दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2. आई विल से z2 एंड z1 डजंट मेक एनी डिफरेंस. So you can learn it by z1 minus z2 also, but I will call it z2 and z1. Or I can also say between z1 and z2. Doesn't make any difference. वो difference जब आएगा तो वो आएगा argument में, but अभी नहीं है तो you can call whatever. ये बताओ mod of z minus 1 क्या होगा? So mod of z minus 1 will be distance of z from 1. And 1 बोलने का मतलब 1 plus 0 I. मतलब z का 1,0 से डिस्टेंस. z प्लस 1 का मतलब क्या होगा? z का -1 से डिस्टेंस, बिकॉज z1 माइनस z2 होता है
बीच में माइनस होना चाहिए, तो डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम -1 मतलब -1 प्लस 0i मतलब -1, 0 से डिस्टेंस। z प्लस 2 माइनस 3i का मॉड क्या होगा? दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन z एंड 2 माइनस 3i इज द रॉन्ग आंसर, -2 प्लस 3i, क्योंकि z1 माइनस z2 होता है। So only this, if you understand, it will be enough to understand the geometry of modulus related geometry of complex number. So now let's start. So mod of z1 minus z2 is distance between z1 and z2. Now if I say mod of z equal to 1, what does it mean? It means z का origin से distance 1 है। So now if I say कि z एक variable point है, z अगर variable point है तो where is that point? So that point is at a distance 1 from origin. Is that understood? z का origin से distance 1 है बोलना is not a good idea because we don't know anything about z. So we are defining z and we define z in terms of known quantities, and the known quantities are कि origin से distance 1 है. Where is z? At a distance 1 from origin. So at a distance 1 from origin मतलब क्या हुआ? Origin से 1 distance पे एक point ये हो गया. So this is the point we are talking about? Not exactly. ये भी तो distance 1 पे ही है. If you see this distance is also 1. So these 2 points we are talking about? No, एक point और भी तो होगा ये ऊपर. This is again 1. So these 3 points we are talking about? No, एक point नीचे भी तो होगा. So these 4 points we are talking about? Yes. So these are the 4 points which are at a distance of 1 from origin. Actually no. There are this point, this point, this point, this point, this point. All these points are at a distance 1 from origin. So if I join all those points, what do I get is this, which is a circle centered at origin and radius 1 unit, which we call unit circle. अगर आपको सर्कल का अब तक पढ़ा होगा तो सर्कल यूनिट सर्कल अगर हो तो उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें देख लो z को अगर मैं x प्लस आई वाई मानता हूं तो उसका मॉड इक्वल टू 1 दिया हुआ है, सॉरी रूट नहीं, उसका मॉड, और मॉड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा और इसको जनरलाइज करूं तो आई कैन राइट इट एज एक्स माइनस 0 स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो इसका सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया 1। इफ यू नो द definitions of equations of circle, then you can understand this, else the geometry is enough. So what we get is कि अगर mod z equal to 1 है, it means all those numbers at a distance 1 from origin, and so we are getting this unit circle. Now if I say mod of z plus 2 equal to 3, what does this mean? Let me convert this to graph to understand better. What do you mean by this? So we mean by this कि z प्लस 2 का मॉड 3 है, मतलब z का माइनस 2 से डिस्टेंस 3 है। सो वेयर इज z? डोंट टॉक अबाउट z, डिफाइन z, एंड z इज एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम -2, 0। -2, 0 से 3 डिस्टेंस पे इफ वी ड्रॉ दे विल बी 1 2 3 1 पॉइंट, 1 2 3 दूसरा पॉइंट, 1 2 3 तीसरा पॉइंट, 1 2 3 चौथा पॉइंट, एंड joining this, when we draw this circle, then all these points are at a distance 3 from this -2. So mod of z plus 2 is again representing a circle at a with center -2 and radius 3.
So if I generalize this and I say mod of z minus z naught equal to r, now understand one thing, z और z naught में क्या डिफरेंस होता है? सेम जो x, y और x1 y1 में होता है, x, y और x naught y naught में होता है, x, y और x2 y2 में होता है. तो x, y इज बेसिकली वेरिएबल, जबकि x1 y1 फिक्स पॉइंट होते हैं, x2 y2 फिक्स पॉइंट होते हैं. तो x naught y naught फिक्स पॉइंट होगा. तो z naught इज अ फिक्स पॉइंट, r इज अ फिक्स नंबर, z इज वेरिएबल. सो इन दिस केस व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट कि z का z naught से डिस्टेंस r है. बट डोंट टॉक अबाउट z, टेल अबाउट z, एंड z इज अ पॉइंट at a distance r from z naught. So if this point is z naught and this distance is r, so where is z? एक तो यहाँ और actually में ये सारे point z के. So what we are getting at is कि mod of z minus z naught equal to r represents a circle centered at z naught and radius r. That's it. So equation of circle is z minus z naught equal का mod equal to r. अगर आपने सर्कल पढ़ा हुआ है तो लेट्स डू इट. z को मैंने x प्लस आई वाई मान लिया और z नॉट को x नॉट प्लस आई वाई नॉट मान लिया. तो z माइनस z नॉट हो जाएगा x माइनस x नॉट प्लस आई वाई माइनस वाई नॉट का मॉड इक्वल टू आर दिया. अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर होगा. स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. दैट इज अगेन सर्कल. सो द स्टोरी इज कि दीज आर इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स. तो सर्कल का इक्वेशन एक तो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देख लिया और ये कार्टेशियन फॉर्म में. सो suppose we have to draw z minus 2 plus 3i का mod equal to 2. what does it look like? इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है -2, 3. नो, इसका सेंटर है 2, -3 और रेडियस क्या है 2. तो 2, -3 विल बी है और रेडियस 2 है. तो 2 यूनिट आजू में, 2 यूनिट बाजू, 2 ऊपर और 2 नीचे, इनको ज्वाइन कर देंगे. सो वी विल गेट दिस सर्कल. सो दैट इज द होल आइडिया अबाउट दिस थिंग. सो यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस ऑल्सो कि z माइनस z नॉट इक्वल टू r is basically a circle centered at z naught and radius r. लोकस के फॉर्म में अगर मैं बोलता हूँ आपको, तो लोकस के फॉर्म में इसका बोल सकते हैं PC इक्वल टू R, वेयर P इज वेरिएबल पॉइंट, C इज फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस इज R. लोकस आपको आता होगा. इफ नॉट देन यू कैन लेटर स्टडी. नाउ टेल मी व्हाट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट. डोंट वरी, लोकस नहीं आता है तो भी यू विल बी एबल टू मैनेज. At equal distance from A and B. A और B दो फिक्स पॉइंट्स हैं, उनसे इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका लोकस आपको फाइंड करना है. लेट अस टेक दीज 2 पॉइंट्स A एंड B. तो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट्स होंगे? इनसे इक्वल डिस्टेंस पे एक तो इनका मिड पॉइंट होगा. एनी अदर पॉइंट which are at an equal distance from A and B, there will be this point. देखना ये दोनों डिस्टेंस सेम है. There will be this point. देखो ये सेम है. There will be this point. नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो सेम नहीं दिख रही है तो ये पॉइंट नहीं होगा. There will be this point. देखो डिस्टेंस सेम है. So what we see that if I join all these possible points, what I am getting is a perpendicular 90 degree bisector of AB. So locus के फॉर्म में we call it PA equal to PB. P is a variable point. उसका A और B से डिस्टेंस सेम है to be write PA equal to PB, which is perpendicular bisector of AB. अब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर मैं देखता हूं तो दिस वेरिएबल पॉइंट बिकम Z
this A becomes Z1 and B becomes Z2. So what is PA? PA का मतलब P का A से डिस्टेंस एंड Z का Z1 से डिस्टेंस मतलब मॉड ऑफ Z माइनस Z1. एंड व्हेन आई से PB मतलब P का B से डिस्टेंस मतलब Z का Z2 से डिस्टेंस तो मॉड ऑफ Z माइनस Z2. तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2 और Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का मॉड 1 इज बेसिकली perpendicular bisector of AB. That is second application of this geometry of modulus. दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे अगर रहना है तो you have to be at the perpendicular bisector of those 2 points. For example, if I say Z minus 2 plus 3i, or let it be clear, अपॉन Z प्लस 2i का मॉड इक्वल टू 1, ये हमें ड्रॉ करना है. व्हाट आई कैन डू इज, एक तो तरीका बिल्कुल बेसिक सा है, Z को x प्लस आई वाई मान लो. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, Z को x प्लस आई वाई मानने का मतलब यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर. यू शुड अवॉइड यूजिंग Z इक्वल टू x प्लस आई वाई. सो व्हाट वी सी दैट कि ये मॉड ऑफ Z माइनस 2 is equal to mod of Z minus 2i. मतलब Z का 2 से डिस्टेंस और माइनस 2i से डिस्टेंस सेम है. मतलब अगर 2 मार्क करोगे तो 2 विल बी है एंड माइनस 2i यहाँ होगा. तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे अगर रखना है तो इट हैज टू बी एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. और अगर आप ड्रॉ करोगे प्रॉपर तरीके से तो यू विल गेट दिस लाइन. एंड इफ यू नो द इक्वेशन ऑफ लाइन देन दिस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू माइनस एक्स और यू कैन से x प्लस वाई इक्वल टू 0. अब ये काम बहुत आसानी से वी कुड हैव मतलब वी डिड सॉल्व इन 5 to 10 seconds यू विल से. बट अगर ऐसा नहीं करेंगे सो व्हाट वी हैव टू डू इज सी, Z को x प्लस आई वाई मानो, माइनस 2 का मॉड इक्वल टू x प्लस आई वाई प्लस 2i का मॉड. जब मॉड लेंगे तो आएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. स्क्वायरिंग करेंगे तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 4x प्लस 4y इक्वल टू 0. दैट इज y x प्लस y इक्वल टू 0. सो बोथ आर गिविंग यू द सेम आंसर. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस perpendicular bisector of AB. So perpendicular bisector of AB is the locus of point which are at an equidistant from two fixed point. So what we saw that कि Z minus Z1 upon Z minus Z2 का मॉड अगर 1 है तो वो perpendicular bisector देता है, perpendicular bisector of AB. But यही अगर लैम्डा हो which is basically a constant जो कि equal to 1 नहीं है, कुछ और है. So what do we get? So let us take this is A, this is B and we have to find the locus. So what usually student tell me कि that will be a line dividing this AB in the ratio lambda is to 1, but that is far from the reality and you won't be able to believe. But this is actually not even a line. This is basically a circle. अब circle जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. But let me tell you about this locus. So if this is A and this is B, so this locus of Z minus Z1 upon Z minus Z2 equals to lambda, which is a constant and not equal to 1 will be a circle. अभी circle कैसा होता है वो देखना. A और B जो पॉइंट्स हैं Z1 और Z2 हैं उनको
लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करो इंटरनली तो आई आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, एक्सटर्नली डिवाइड करोगे तो आपको ई पॉइंट मिलेगा। सो डिवाइड Z1 and Z2 in the ratio lambda is to 1 internally as well as externally, and then a circle drawn on I and E as diameter will be the required locus. मतलब all these points on this blue circle will be those points Z जिनका Z1 Z2 से डिस्टेंस का रेशियो लैम्डा है। आई और ई में तो साफ साफ आपको दिख रहा है, बट बाकी पॉइंट्स में भी ऐसा ही होगा। सो इफ आई से ज्योमेट्रिकली इफ आई सी तो मुझे लगभग ये लैम्डा 2 जैसा दिख रहा है। देख लो, ए आई और आई भी 2 का रेशियो है और ई थोड़ा सा और आगे होना चाहिए था, बट दैट इज ओके। तो जेड का कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं तो इनका रेशियो 2 डबल जैसा दिख रहा है। थोड़ा और क्लैरिटी ले आते हैं। सो अगर 2:1 में डिवाइड करना ही है, सो लेट्स डू इट प्रॉपर्ली। ये मैंने ए और बी लिया। सो इसको 2:1 में इफ आई डिवाइड आई विल गेट दिस पॉइंट विच इज आई। ई कहाँ होगा? ई विल बी 1 2 3 4 5 6। दिस पॉइंट विल बी ई। 2:1 internal, 2:1 external, and then see 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच का डिस्टेंस 8 है। तो दिस पॉइंट विल बिकम सेंटर, क्योंकि हमने डायमीटर माना है। 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे। इफ आई ज्वाइन दिस आई विल गेट दिस सर्कल। दिस इज वेरी रियलिस्टिक कर्व। नाउ यू सी, कोई भी पॉइंट पिक कर लो। ये पॉइंट लेते हैं, पी ए बाई पी बी 2:1 जैसा दिख रहा है। पी सर्कल का पॉइंट पी है, पी ए बाई पी बी देखो डबल जैसा दिख रहा है। ये पॉइंट ले लेते हैं, पी ए बाई पी बी डबल जैसा दिख रहा है। पी ए बाई पी ए बाई पी बी और यहाँ भी पी ए बाई पी बी। तो एवरीवेयर यू सी कि पी पॉइंट कहीं भी लेते हैं, एवरीवेयर यू सी कि पी ए जो है वो पी बी का डबल है। सो कमिंग अगेन टू द रिजल्ट कि पी ए बाई पी बी अगर लैम्डा है विच इज अ कांस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट हैज टू बी अ कांस्टेंट एंड नॉट इक्वल टू 1 इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। पी ए का मतलब पी का ए से डिस्टेंस, जेड का Z1 से डिस्टेंस इक्वल टू लैम्डा, अ कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 1 विल बी अ सर्कल जिसमें ए और बी पॉइंट है। दोज आर Z1 एंड Z2। इनको डिवाइड करेंगे लैम्डा इज टू 1 में, इंटरनली तो I1 आएगा और एक्सटर्नली तो I2 आएगा, सॉरी ई आएगा। अब आई ई को डायमीटर मान के जो सर्कल बनाओगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड लोकस। नाउ देयर आर मच मोर थिंग्स टू दिस, लेट मी टेल यू। सो फर्स्ट थिंग, आई एंड ई divide AB in lambda is to 1 internally and externally. Second, IE is diameter of the circle. So, midpoint of IE will be center of this सर्कल। और आई ई का जो मिड पॉइंट होगा, इफ यू सी, वो आई मतलब पूरे लाइन ए बी पे नहीं होगा। ये ना ए पॉइंट सर्कल पे लाई करता है ना बी पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, और पूरा का पूरा सेंटर ही, सॉरी सेंटर जो है दैट इज ऑल अवे फ्रॉम द लाइन सेगमेंट ए बी। पूरे सेगमेंट पे भी वो सेंटर नहीं आता है। एंड डायरेक्टली ये जो सेंटर होता है दैट डिवाइड्स ए बी
in the ratio lambda square is to 1 externally. ये रिजल्ट है. अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो यू कैन कैलकुलेट फाइंड आई, फाइंड ई एंड फाइंड मिड पॉइंट. और मिड पॉइंट मिलने के बाद यू कैन डायरेक्टली फाइंड द रेशियो इन विच दिस सेंटर सी इज डिवाइडिंग ए बी, एंड दैट इज ऑब्वियसली यू सी बाहर के साइड में है तो नेगेटिव आया है, एक्सटर्नल लिखा है मैंने लैम्डा स्क्वायर इज टू 1. we can also write minus lambda square is to 1. So this is another application of modulus, very important application I will say. Then next part is, let me convert again, PA plus PB equal to lambda. What do you remember now? Now if you are from 11th standard you won't be able to find it, but 12th वालों को पता चल जाना चाहिए. ऐसा एलिप्स में हुआ करता था. एलिप्स में दो पॉइंट होते थे S और H डैश, लेट मी से A एंड B. एलिप्स का कोई भी पॉइंट P ले लो, ये जो PA प्लस PB है वो हमेशा that is always a constant, and that constant is actually equal to this line, which is actually major axis. So if you don't know about the ellipse, then understand this कि sum of distances from two fixed point अगर constant है, A और B से अगर fixed distances का sum अगर fixed है तो that point lies on an ellipse. देखो इधर वापस से और देखना, अगर ये पॉइंट लेते हैं तो भी PA प्लस PB ये येलो की लेंथ के बराबर आएगा. लेट अस टेक दिस पॉइंट P, तो अगेन PA प्लस PB येलो लाइन की लेंथ, PA प्लस PB येलो लाइन का लेंथ, PA प्लस PB येलो लाइन का लेंथ. सो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू येलो लाइन का लेंथ. नाउ टेल मी वन थिंग कि लैम्डा अगर AB से ज्यादा है, ये जो येलो लाइन का लेंथ है that is greater than AB or less than AB, you can simply say AB से तो बड़ा है. So in this case we are getting ellipse. और लैम्डा अगर equal to AB हो गया तो, so लैम्डा अगर equal to AB हो गया तो now this will not remain an ellipse, it will become something different, and it is actually line segment, because the condition is C, PA plus PB equal to lambda. Let me reframe it. PA plus PB equal to AB. PA plus PB equal to AB, something you remember. AB plus BC equal to CA. AB plus BC equal to CA is called, ट्राइंगल में होता था ना, ट्राइंगल के दो, कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट, दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा होगा तो ट्राइंगल, थर्ड से छोटा होगा तो लाइन हुआ करता था, थर्ड्स के इक्वल होता था. तो कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट था PA plus PB equal to AB. So here also we are seeing that PA plus PB equal to AB, so that will be a line segment, but mostly हर जगह सीधा लाइन लिखा होता है तो that will do. और अगर लैम्डा AB से कम हो गया तो, if lambda is less than AB, pause the video, think about it. I am not giving you much time if you don't pause it. So everywhere you keep pausing the video, देखो, rewind करो, वापस से देखो, because speed is fast. I want to cover as much as possible, so I am a bit fast. So आपको pause करना है, वापस से सुनना है, समझना है. नहीं समझ में आए तो वापस से 2 बार 3 बार देखोगे, slowly खुद से लिखोगे, solve करोगे, you will be able to manage. और लैम्डा लेस देन अगर AB है तो कुछ भी नहीं बनता है, बिकॉज अंडरस्टैंड, इफ यू रिकॉल अ ट्राइंगल, तो वहां क्या होता था, जो दो साइड का सम होता था वो थर्ड से ज्यादा होता था. तो थर्ड पॉइंट अगर बाहर है तो PA प्लस PB ग्रेटर देन AB हो, अगर इक्वल है तो ऑन द लाइन होगा, लेस देन AB का पॉसिबिलिटी ही नहीं बचता. सो दो साइड का सम या तो थर्ड से ज्यादा हो, दो साइड का सम या तो थर्ड से ज्यादा होगा या थर्ड के इक्वल होगा, लेस देन तो इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर लेस देन AB है तो दैट विल बी null set, there will be no such point.
Now we are going to convert this to complex number form. कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको. टेक अ पॉज एंड राइट इट. आई एम गोइंग टू p को मैं z मान लेता हूं. लेट अस टेक p इक्वल टू z और a z1 और b z2. तो p हो जाएगा मॉड ऑफ z माइनस z1, pb हो जाएगा मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू लैम्डा. नाउ द केसेस लैम्डा ग्रेटर देन ab को कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस z2. सो दैट विल बी एलिप्स. लैम्डा इक्वल टू ab इक्वल टू दिस, देन दैट विल बी लाइन सेगमेंट. और लैम्डा लेस देन z1 माइनस z2 मॉड विल बी नल सेट. So this is the idea, and this is very important again. Understand these kind of questions are also asked in the examinations, and everybody say तो पक्का एलिप्स होगा. So जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, and I will say 95% of the people, at least 90% of the people directly write ellipse. ये तो हमें पता है तो एलिप्स होगा, because PA plus PB इक्वल टू AB होता है. बट दे डू नॉट चेक कि वो जो लैम्डा है वो AB से बड़ा है या नहीं है. सो व्हाट आई से कि एग्जाम में, कोई भी अच्छे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर एलिप्स तो होगा ही नहीं. इन एनी गुड एग्जाम आंसर विल बी लाइन, क्योंकि एलिप्स तो वो भी लिख सकता है, इसको कुछ नहीं आता है. ही ऑल्सो नोज कि एलिप्स है, उसको कुछ आने की जरूरत नहीं है. सो इफ यू नो द कंडीशन then you will check and you will see कि this is a line segment. और अगर चेक करने के बाद लैम्डा इक्वल टू AB नहीं आया तो ना, वापस से चेक करो, वही आएगा. मतलब आई एम 100% श्योर कि आंसर विल बी लाइन सेगमेंट और लाइन इन एनी गुड एग्जाम. अब जस्ट इन केस कहीं एलिप्स आ गया तो आई कांट हेल्प इट, बट इट विल नॉट, बिकॉज एनी सेम any person with right frame of mind who is making paper for JEE or competition, he will not give you ellipse वाला case. So remember. And similarly एक और केस होता है, that is PA minus PB equal to lambda. To be more precise, mod of PA minus PB equal to lambda, which is actually hyperbola. हाइपरबोला में, अच्छा ये जो पी ए और पी बी है ना, ये फोकल डिस्टेंसेस होते हैं. एलिप्स में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे हाइपरबोला है, हाइपरबोला में पढ़ेंगे. तो फोकल डिस्टेंसेस का सम हमेशा 2a होता है एलिप्स में, और डिफरेंस हमेशा 2a होता है हाइपरबोला में. अब यहाँ पे भी वही स्टोरी है कि लैम्डा ग्रेटर देन ए बी, लैम्डा इक्वल टू ए बी एंड लैम्डा लेस देन ए बी. सो रिमेंबर, ऊपर लैम्डा ग्रेटर देन ए बी में एलिप्स था, यहां लैम्डा लेस देन ए बी में एलिप्स नहीं, हाइपरबोला होगा. इक्वल टू ए बी में वहां लाइन था, यहां भी लाइन होगा, बट एक्चुअली में लाइन टू जनरल केस बोलते हैं, होते ये है रेज. लाइन सेगमेंट ए बी एलिप्स में था, ए बी को छोड़ के इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, दोज आर कॉल्ड टू रेज विल बी देयर, बट लिखा हुआ शायद आपको लाइन ही आएगा. ऊपर एलिप्स वाले केस में इफ यू सी तो लेस देन ए बी में नल सेट था, यहां ग्रेटर देन ए बी में नल सेट होगा. एंड नाउ कन्वर्टिंग दिस टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट इज योर होमवर्क. उसको जेड में कन्वर्ट करना है, सो दैट इज योर होमवर्क. So I think these are part of geometry of modulus. Modulus में और questions इधर उधर से पूछे जा सकते हैं. Like let me ask you some questions. Z minus Z1 square plus mod of Z minus Z2 square is mod of Z1 minus Z2 square. What do you think about it? Pause करो और सोच लो. What I see here is I see something like Pythagoras. I see something like Pythagoras. अगर मैं इसको लोकस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो z हो जाएगा p. Let me take it as a. z1 को b मान लेता हूं तो ये ab स्क्वायर हो गया. z का z2 से डिस्टेंस ac स्क्वायर हो गया, और z1 का z2 से डिस्टेंस bc स्क्वायर हो गया.
Would we see that AB square plus AC square equal to BC square, which is actually Pythagoras theorem. And so PA square plus PB square equal to AB square. अब पाइथागोरस में हमें P का लोकस बताना होता है. P कहाँ होता है? तो P होता है राइट एंगल्ड वर्टेक्स. ना सपोज दिस इज A एंड B, तो P कहाँ होगा? P वहां होगा जहां भी 90 डिग्री बन रहा हो. मतलब यहां हो सकता है P. और कोई केस? यस, यहां बन सकता है P. एनी अदर केस? अगर ये 90 है तो ये 90 नहीं दिख रहा है. लेट मी कन्वर्ट चेंज है. ये 90 दिख रहा है तो ये हो सकता है P. ये 90 दिख रहा है, ये हो सकता है केस. So if I join all these points, what do I get is a circle with AB as diameter, because we know that 90 degree is the angle of semicircle. So AB has to be diameter, तो ही हर पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा. So I will say कि this will represent a circle with Z1, Z2 as ends of diameter. Z1, Z2 as ends of diameter. So this is another application of modulus. So there may be much more, but let me finish it here. And now we are going to geometry of argument. आर्गुमेंट की बात करते हैं. तो आर्गुमेंट ऑफ Z क्या था? अगर कोई नंबर Z है तो आर्गुमेंट था ये वाला एंगल. ये एंगल कौन सा है? ओरिजिन से Z को ज्वाइन करने वाला वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाता है. अगेन वही स्टोरी. भाई जीरो कहां से आया? आर्गुमेंट Z को we can write argument of Z minus 0, and now you will be able to recollect that argument of Z1 minus Z2 क्या होगा. तो argument of Z1 minus Z2 होगा angle made by the vector joining Z2 to Z1. Z minus 0 में क्या था? 0 से Z को ज्वाइन करते थे. वेक्टर A माइनस वेक्टर B, वेक्टर BA होता है या वेक्टर AB होता है? वेक्टर BA होता है. तो A माइनस B लिखते हैं. तो सिमिलरली यहां पर भी आर्गुमेंट Z1 minus Z2 will be the angle made by the vector joining Z2 to Z1 with positive x-axis in ACW. So if I take this is Z1 and this is Z2, so Z2 से Z1 वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल फॉर्म करता हो, what do you say approximately value of argument Z1 minus Z2 in this case? अब ये वेक्टर है, we know that वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं अगर वो फ्री वेक्टर, एंड अपने कोर्स में फ्री वेक्टर ही है. तो दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर ऑल्सो. नाउ दिस एंगल लुक्स लाइक 20 डिग्री, 30 डिग्री यू कैन से. चलो, सो आर्गुमेंट इज व्हाट? 150 degree. So in this particular diagram I can say कि argument of Z1 minus Z2 comes out to be 150 degree. So argument of Z1 minus Z2 मतलब angle made by the line vector joining Z2 to Z1 with positive x-axis in ACW. I will write it here. Angle made by vector joining Z2 to Z1 with positive real axis. जब लिख रहे हैं तो अच्छा लिखो, in anti-clockwise direction. Now if I say कि argument of Z equal to 30 degree, it means what? It means कि ओरिजिन से Z को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन ACW. सो वेयर इज Z? एट एन एंगल 30 डिग्री with positive x-axis
in ACW मतलब है. So all these points are basically Z, because किसी भी पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो दैट इज मेकिंग 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन ACW. So what does this equation represents? When I say argument Z equals to pi by 6, what I am getting is all these points, and all these points combined they called ray. It is not line. line नहीं है, ये रे है. लाइन दोनों डायरेक्शन में होता है. अगर इधर का पॉइंट लोगे ना तो एंगल 210 हो जाएगा. सो वी कैन नॉट टेक दिस cases, we can only take these tick wala cases which are actually on the positive side only. So let me draw this again. Okay, that will be these. ये सारे पॉइंट भी. तो आर्गुमेंट ऑफ Z equal to, if I say alpha, so that represents a ray starting from origin at angle alpha. थोड़ा और जनरलाइज करते हैं. आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z नॉट इक्वल टू अल्फा मतलब क्या हुआ? आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z नॉट इक्वल टू अल्फा का मतलब हुआ कहाँ होगा Z? Z नॉट से स्टार्ट होगा, Z नॉट कहीं भी हो सकता है, और अल्फा एंगल फॉर्म करते हुए लाइन बनाएगा. सो दिस इज योर अनदर रे दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम Z नॉट इन द एंगल अल्फा. थोड़ा और क्लियर होगा भी देखना. आर्गुमेंट ऑफ 2 minus 3i is 135 degree. Pause and try to draw this. Start कहाँ से? सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ Z तो भूल गया मैं. आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 2 प्लस 3i. सो ये भी एक रे होगा जो स्टार्ट कहाँ से होगा? -2, नहीं, 2, -3 से. तो 1 2 1 2 3 2, -3 Z नॉट मान लो उसको बोलते हैं. और एंगल क्या बोल रहे हैं? एंगल इज 135 डिग्री, और 135 डिग्री पे होगा तो इस तरह का लाइन बनेगा. दिस शुड बी दो रे. देख लो 135 डिग्री मतलब यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज 135 डिग्री, दिस इज 135 डिग्री. एक साथ एंगल बनाने का मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल हुआ, तो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करना हो वहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और उससे एंगल बना लो. लेट्स डू वन मोर. आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 3i इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? -3i नहीं, +3i से स्टार्ट हुआ, और एंगल 60 डिग्री है. तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया एंड समथिंग लाइक दिस. सो दिस वुड बी योर रे. सो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z नॉट इक्वल टू अल्फा मीन्स और रे स्टार्टिंग एट Z नॉट एट एंगल अल्फा. अब मैंने यहाँ थीटा नहीं लिखा है, अल्फा लिखा है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड अल्फा. थीटा इज लाइक वेरिएबल, अल्फा इज लाइक फिक्स नंबर. जैसे xy और x1 y1, वैसे थीटा और अल्फा बीटा गामा. सो फॉर फिक्स कांस्टेंट एंगल के लिए वी यूज अल्फा, बीटा, गामा, एंड फॉर वेरिएबल्स वी यूज थीटा. सो now one more thing, a couple of more things I am going to tell you. वो थोड़ा समझ में आपको कम भी आ सकता है because we have not done much questions. So once you will do a lot of question, you will be able to understand that. But try to understand and learn, basically याद कर लो. Mod argument of Z minus Z1 upon Z minus Z2 equal to alpha. Alpha एक constant होगा. Argument of Z minus Z1 upon Z minus Z2 equal to alpha. I am trying to explain
देखना ये Z1 है, Z2 है, तो जो लोकस फाइंड करना है P पॉइंट का, इट शुड बी समथिंग कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। तो लेट मी कन्वर्ट दिस टू Z1। सो अगर मैं बोलूं कि भाई अल्फा डिफरेंस होना चाहिए, तो आई विल से कि दैट विल बी एन आर्क ऑफ द सर्कल, दैट विल बी एन आर्क ऑफ द सर्कल। क्यों? आपको पता है, यू नो दैट at any point of the arc this angle is going to be same. All these angles are basically same. So if you want to make a particular angle, then you have to choose the arc of the circle. So argument Z minus Z1 upon Z minus Z2 equal to alpha represents arc of circle. वैसे लिखा होता है मोस्टली सर्कल ही लिखा हुआ आएगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट कंप्लीट सर्कल, इट इज आर्क ऑफ द सर्कल। नाउ सम मोर पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। कि ये पॉइंट पूरा जो भी ब्लैक पार्ट है, दैट कंप्लीट इज basically locus of that point P, matlab all these points are Z, because everywhere we are making alpha angle. You have to remember 2-3 things कि first ये arc होगा, second Z1 से Z होते हुए आप Z2 की तरफ जाएंगे, you will go from Z1 to Z2 by drawing the arc of circle, and that should be anti-clockwise. Z1 Z2 का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि अगर ये दो पॉइंट गिवन हैं A और B, तो 30 डिग्री या 45 ऊपर भी बनेगा और 45 नीचे भी बनेगा। सो विच वन वी आर सपोज टू चूज? वी आर नॉट गोइंग टू चूज बोथ, बिकॉज द आइडिया इज कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज समथिंग लाइक वेक्टर, और वेक्टर जैसा है तो आपको वो डायरेक्शन का सेंस रखना पड़ेगा। And so I am telling you from Z1 to Z to Z2 you have to join anti-clockwise. Next is ये जो angle alpha है, that alpha is at circumference, but that is not very important. The important part is angle at center. और सेंटर पे एंगल क्या होगा? दैट विल बी 2 अल्फा। आपको बहुत पहले से पता है कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल होता है। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। Z माइनस 2 अपॉन Z प्लस 2i का आर्गुमेंट इज 45 डिग्री। आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल। सो इसमें Z1 क्या है? Z1 है 2,0, Z2 है -2i मतलब 0,10 और अल्फा है 45 डिग्री। तो लेट मी ड्रॉ 2,0 दैट इज Z1 मतलब A यू कैन से 0, -2 दैट इज Z2। अब Z1 Z2 कॉर्ड हो गया उस सर्कल का। सर्कमफेरेंस पे एंगल 45 है, सर्कमफेरेंस पे एंगल 45 है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। This angle which is important for me is angle at the center, और सेंटर पे एंगल क्या होगा? 90 होगा। Now I know that कि सेंटर किसी भी कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है, तो सेंटर इस लाइन पे होगा। And now in this particular case you can just see and tell me where is the center. ये ग्रीन लाइन पे कहाँ पे Z1 Z2 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, एंड दैट इज वेरी क्लियर दैट इट विल बी ओरिजिन। देखो ये 90 डिग्री होता है, मतलब ओरिजिन इज सेंटर एंड Z1 Z2 आर 2 पॉइंट्स। नाउ आई विल ज्वाइन दिस। Z1 से Z2 एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए ऐसा आया, अगर उल्टा करते तो इधर आता क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे भी बनता।
So this is not the case because we are going Z1 to Z2 anti-clockwise. So you have to remember these things कि angle at center is more important than angle at the circumference. Let me take one more example. Z minus 2 sorry mod नहीं है upon Z plus 3i का argument is 30 degree. So what is A? A is basically 2. What is B? B is basically minus 3. थोड़ा छोटा करना पड़ेगा. 1 2 3. This is B minus 3. थोड़ा और क्लियर बनाते हैं. Let me convert it to graph. Okay. So this is 2, which is A, and B is minus 3. अब AB जो है, AB is basically chord और सेंटर होता है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं. तो सेंटर ये ब्लू लाइन पे होगा. ऊपर होगा या नीचे होगा, दैट यू हैव टू डिसाइड नाउ, बिकॉज वी हैव टू मूव फ्रॉम A to B एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऊपर के साइड, मतलब यू कैन से लेफ्ट साइड में आएगा, समथिंग लाइक दिस. सो ये ब्लू लाइन पे होगा और ब्लू लाइन पे जो सेंटर है वहां पे एंगल 60 बनेगा. अब ऐसे थोड़ा सा सेट करके यू कैन ड्रॉ, बट प्रोफेशनली प्रॉपरली इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस, देन व्हाट यू सी, एक अलग से बनाता हूं मैं. यहां पे अगर 60 बनना है तो ये हाफ एंगल 30 होगा, ये 90 है तो ये एंगल 60 होगा. मतलब इस A पॉइंट से 60 डिग्री एंगल पे जाना है. आई एम नॉट श्योर कि 60 डिग्री यहाँ पे एग्जैक्टली कैसा होगा. लेट मी ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस. और B से भी AB से 60 डिग्री बनाएंगे to something like this. This looks like our center. And now this is the center. So A circumference का point है. We will join them and we find this. So this is argument का ज्योमेट्री. और भी आगे आएगा. We will continue. Thank you.